السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروس۔ سائبرآباد پولیس کے زیر اہتمام شمشاباد میں ایس کنونشن میں DCP جگدیشور ریڈی کے نگرانی میں پولیس پری ریکروٹمنٹ مفت ٹریننگ کلاسز کا آغاز۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اسٹیفن رویندرا نے کیا خطاب۔ خفیہ اطلاع ملنے پر کمشنر ٹاسک فورس نارتھ زون ٹیم کے اہلکاروں نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر مارکیٹ، چلکل گڑا اور کارخانہ پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں بیک وقت مارے دھاوے 3 افراد گرفتار، جو ملزمان غیر قانونی طور پر بھاری مقدار میں گھریلو گیس سلنڈر کی خریداری اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے۔ ناگرجنا ساگر میں سب سے بڑا بدھسٹ ہیریٹیج تھیم پارک بدھاونم پروجیکٹ جلد ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امکان ہے کہ اسے چکلی گٹو جزیرے سے جوڑا جائے گا۔ پارے کی سطح بڑھنے کے ساتھ ہی کالی فلمیں اور بھاری رنگت والے شیشے شہر میں واپس، تاہم سٹی پولیس نے رنگ برنگے شیشوں کے خلاف خصوصی مہم کی شروع۔ سماجی کارکنوں کا دعویٰ کہ لوگوں میں کالے شیشوں کے خلاف بیداری کی کمی۔ ایک ایسے وقت میں جب مختلف محکموں میں اسامیوں کو پر کرنے کی کوشش جاری، ریاستی حکومت نے ورنگل میں MGM اسپتال کے لیے معاہدے کی بنیاد پر مختلف اسپیشلٹیز کے اسسٹنٹ پروفیسرز اور سول اسسٹنٹ سرجن کے عہدوں کے لیے درخواست طلب کیے۔ ریاستی BJP صدر بنڈی سنجے کمار نے دھان کی خریداری کے مسئلے پر وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ایک کھلا خط لکھا۔ اپنے خط میں کریم نگر کے MP نے CM سے کہا کہ اگر وہ خود دھان کی خریداری نہیں کرتے تو وہ استعفیٰ دیں۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے شہریوں سے کیا مطالبہ کہ وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی گرین انرجی کے اقدامات شروع کریں۔ آؤٹر رنگ روڈ کے قریب 89 کالونیوں کو اپریل کے پہلے ہفتے تک پانی کی کنیکشن فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر دانا کشور نے آبی ذخائر کی تعمیر اور آؤٹر رنگ روڈ فیز 2 کے تحت پائپ لائنیں بچھانے میں شامل کمپنی کے لیے ایک آخری تاریخ کی مقرر۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنان نے جمعے کو RRR فلم ٹیم کے لیے بسوں کا کیا انتظام۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد سے ویو راک تک بسیں چلا رہی۔ منی AC بسیں IT ملازمین کو گرمی سے نجات دلائیں گی۔ اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ نے تلنگانہ اسٹیٹ پولیسیٹ 2022 کے داخلہ امتحان کے شیڈول کا کیا اعلان۔ یہ امتحان 30 جون کو منعقد ہونے والا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے بھرتی کے اپنے بڑے منصوبے کے اعلان کے بعد نوجوانوں کی ایک ریکارڈ تعداد نے شہر میں لائبریریوں کا دورہ کرنا شروع کیا، تاہم پرانے شہر کے نوجوانوں کو لائبریریوں اور کوچنگ سینٹرز جیسی سہولیات کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ وزیر جگدیش ریڈی نے کہا، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ NFSA کے مطابق مرکزی حکومت کو ریاست میں دھان کی خریداری کرنی چاہیے۔ تلنگانہ حکومت نے ٹیچرز اہلیتی امتحان ٹیٹ 12 جون کو منعقد کرنے کا کیا اعلان۔ محکمہ تعلیم کے عہدیداروں نے کہا، ٹیٹ امتحان میں شرکت کے خواہش مند امیدواروں کو 26 مارچ سے آن لائن طریقے سے درخواست داخل کرنے کا مشورہ۔ نامپلی کی ایک عدالت نے نظام آباد کے BJP رکن پارلیمنٹ دھرم پوری اروند کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ کیا جاری۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔
नागार्जुना सागर में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क बुद्धावनम प्रोजेक्ट जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इम्कान है कि उसे चकली गुट्टू जजीरे से जोड़ा जाएगा। हुकाम के मुताबिक पार्क में काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इफ्तिताह के लिए सीसीटीवी की सहूलत, टिकटिंग मशीन और दीगर सहूलियात की जरूरत है। वजीर सयाहत अवीस नवाज गौर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो काम को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करें ताकि इसका इफ्तिताह किया जा सके। उन्होंने उनसे बुद्धावनम के करीब चकलीगुट्टू जजीरे की तरक्की के लिए एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है ताकि इस जगह को सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की दी जा सके। बुद्धावनम प्रोजेक्ट के बारे में जराये ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे, टिकटिंग मशीन और टिकटिंग अमले की जरूरत है। हुकाम के पास तरबियत याफ्ता रहनुमा हैं। 10 में से 6 गाइड ज़ायरीन को इस जगह की अहमियत समझाने के लिए तैयार हैं। जराये ने यह भी कहा है कि बाकायदा देखभाल की जरूरत है। निज़ाम अपनी जगह पर होना चाहिए। हुकाम के मुताबिक इतवार को 700 ता 800 ज़ायरीन इस मंसूबे को देखने के लिए आ रहे। बुद्ध मत के मुकाम पर रोजाना औसतन 300 लोग आते हैं। पारे की सतह बढ़ने के साथ ही काली फिल्में और भारी रंगत वाले शीशे शहर में वापस आ गए हैं। ताहम सिटी पुलिस ने रंग बिरंगे शीशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। समाजी कारकुनों का दावा है कि लोगों में काले शीशों के खिलाफ बेदारी की कमी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA रजिस्ट्रेशन के लिए रंगीन शीशों वाली गाड़ियों को पास कर रही। उसूलों की सरे खिलाफ वर्जी करते हुए कार मालिकान गर्मी को शिकस्त देने के लिए अब गाड़ियां सियाह रंग की खिड़कियों से चला रहे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तमाम गाड़ियों के हिफाजती शीशों और साइड शीशों पर काली फिल्मों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म जारी किया था। RTA के मुताबिक काली फिल्में ममनू हैं, हालांकि ब्रांड के तैयार करदा रंग के शीशे 30% काबिल इजाजत है। ट्रैफिक पुलिस खिलाफ वर्जी करने और फिल्म को छेलने पर 1000 रुपए के चालान कर रहे। कारकुनों के मुताबिक शहरी वाज़े तौर पर उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्योंकि RTA, ट्रैफिक पुलिस और विजिलेंस डिपार्टमेंट इस उसूल और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। M. दयानंद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना ऑटोज एंड मोटर्स वेलफेयर यूनियन ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तकरीबन 60% कारें रंगदार हैं, जिनमें से 50% से शुरू होकर पूरे काले शीशों से रंगे हुए हैं। ये जाहिर करता है कि हुकाम अहकामात को नाफिज करने में नाकाम रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब मुख्तलिफ महकमों में असामियों को पूर करने की कोशिश की जा रही, रियासती हुकूमत ने वरंगल में MGM अस्पताल के लिए मुआहदे की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स और सिविल असिस्टेंट सर्जन के ओहदों के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। हुकूमत ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, OBG और सिविल असिस्टेंट सर्जन के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स की 15 आसामियों के लिए 20 हर आसामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हुए एक रिलीज जारी की है। दरख्वास्तें 26 मार्च से हासिल की जा सकती हैं। उन्हें भेजने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है। मुंतखब उम्मीदवारों को 1,25,000 रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए और 52,000 रुपए सिविल असिस्टेंट सर्जन के लिए मजमूई तनख्वाह मिलेगी। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने धान की खरीदारी के मसले पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक खुला खत लिखा। अपने खत में करीमनगर के MP ने CM KCR से कहा है कि अगर वो खुद धान की खरीदारी नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा दे दे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि KCR ने इस मसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए अपने खत में कई झूठ बोले हैं। बंडी संजय कुमार ने यह भी इल्जाम लगाया कि CM ने अपने खत में किसानों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक प्रेस मीटिंग करके वजीर आला के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि KCR को 1 मिनट के लिए भी ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक नहीं है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने शहरियों से मुतालबा किया है कि वो अपनी रिहाइशगाह से ही ग्रीन एनर्जी के इक़दामात शुरू करें। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैंपस में मुस्तकबिल के लिए ग्रीन एनर्जी पावरिंग MSMEs पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हर सतह पर सब्ज़ तवानाई और मुतल्लिक़ा टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग़ पर जोर दिया।
تیل کے بڑے درآمدی بلوں کی وجہ سے ہمارے زرمبادلے کے ذخائر میں کمی کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمل سائی سندرا راجن نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم متبادل قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دیں اور سبز توانائی کے استعمال کو فروغ دیں۔ گورنر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سال 2030 تک 500 گیگا واٹ گرین پاور بنانے کے ویژن پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے لوگوں کے تمام طبقوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو 2070 تک نیٹ زیرو ایمیشن ملک کے طور پر ابھرنے کے لیے اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد کرے، ایندھن کا منصفانہ استعمال اور سبز توانائیوں کو فروغ دینا ہے۔ नाजरीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आउटर रिंग रोड के करीब 89 कॉलोनियों को अप्रैल के पहले हफ्ते तक पानी के कनेक्शन फराहम करने के मकसद के साथ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने आबी ज़खायर की तामीर और आउटर रिंग रोड फेज 2 के तहत पाइपलाइनें बिछाने में शामिल कंपनी के लिए एक आखिरी तारीख मुकर्रर की है। MD ने आउटर रिंग रोड में तामीराती साइट का मुआयना किया और कंपनी के इंजीनियर से बातचीत की। उन्होंने बोर्ड के अहदेदारों और कंपनी के नुमाइंदों को हिदायत की कि वो अप्रैल के पहले हफ्ते तक तरजीही तौर पर शनाख्त शुदा इलाकों में पानी की फराहमी के हदफ की समत काम करें। रिजर्वायर्स को कोका कोला कॉलोनी में तामीर किए जा रहे बशमुल रामकृष्णापुरम, अयप्पा कॉलोनी, अनुजीगुड़ा, चौधरीगुड़ा के अलावा केसरा और घट केसर जोन में भी। बोर्ड ने मरहला 1 में 613 करोड़ रुपए की लागत से ये काम शुरू किया है, जिसके तहत 65.5 मिलीलीटर की गुंजाइश के साथ 34 आबी ज़खायर और 1571 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर की जा रही। फेज 2 के तहत आबी ज़खायर की तामीर के लिए मजीद 587 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने जुमे को RRR फिल्म टीम के लिए बसों का इंतजाम किया। सोशल मीडिया पर बात करते हुए VC सज्जनार ने कहा है कि RTC ने RRR टीम के लिए बसों का इंतजाम किया है। सज्जनार के इशारे के लिए शुक्रिया अदा करते हुए टीम ने ट्वीट किया, VC सज्जनार का शुक्रिया कि उन्होंने RRR फिल्म देखने के लिए हमारी टीम के लिए TSRTC बसों का इंतजाम किया। हम आपकी मुसलसल हिमायत को हमेशा याद रखेंगे। RRR जिसमें NTR जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन ने अदाकारी की है, आजादी पसंदों कोमरम भीम और अलूरी सीताराम राजू से मुतासिर है। ये 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से वेव रॉक तक बसें चला रही। मिनी AC बसें IT मुलाजमीन को गर्मी से निजात दिलाएंगी। मिनी AC बसें साइबर टावर्स, माइंड स्पेस, बायोडाइवर्सिटी पार्क, गच्चीबौली, विप्रो, इन्फोसिस, ICICI बैंक, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और अमेजॉन के जरिए चलेंगी। GNTU से वेव रॉक तक बस के औकात दर्ज झैल हैं। सुबह
8 बजे, 8:45, 9:40, सुबह 10:35, 11:10, दोपहर 1 बजे, 4:15, शाम 5:10, शाम 6 बजे और शाम 7 बजे। साइबर टावर से JNTU तक बस के औकात हैं सुबह 8:50, सुबह 9:35, सुबह 10:01 पर, दोपहर 12 बजे, दोपहर 3:25 को, शाम 6:20 को, शाम 5:15 को और शाम 6:10 को। टिकट की कीमत JNTU से माइंड स्पेस तक 25 रुपए है, JNTU से वेव रॉक तक 40 रुपए है, बच्चूपल्ली से वेव रॉक तक 63 रुपए है और साइबर टावर्स माइंड स्पेस तक 25 रुपए है। मज़ीद मालूमात के लिए लोग डिपो मैनेजर से 9959226132 पर राब्ता कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने तेलंगाना स्टेट पॉलिसेट 2022 की दाखिला इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान किया। ये इम्तिहान 30 जून को मुनक्किद होने वाला है। एक बयान में पॉलिसेट के कन्वेनर ने कहा कि तलबा से अप्रैल के दूसरे हफ्ते से 4 जून तक ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। ताहम तलबा 5 जून की लेट फीस के साथ 5 जून तक भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इम्तिहान के 12 दिन बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। पॉलिसेट का इनेकाद उन तलबा के लिए किया जाता है जिन्होंने अपनी SSC मुकम्मल कर ली है, ताकि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सरकारी इमदाद याफ्ता, गैर इमदाद याफ्ता पॉलिटेक्निक इदारों में पेश किए जाने वाले नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिला हासिल किया जा सके। उम्मीदवार मजीद तफसीलात के लिए tspoliset.nic.in पर मुलाहिजा कर सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनज़र सुर्खियों पर। साइबराबाद पुलिस के ज़र एहतमाम शमशाबाद में SS कन्वेंशन में DCP जगदीश्वर रेड्डी के निगरानी में पुलिस प्री रिक्रूटमेंट मुफ्त ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टेफन रविंद्रा ने किया खिताब। खुफिया इत्तला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के एहलकारों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मार्केट, चिलकलगुड़ा और कारखाना पुलिस स्टेशनों की हदूद में बैक वक्त मारे धावे 3 अफराद गिरफ्तार, जो मुलजिमान गैर कानूनी तौर पर भारी मकदार में घरेलू गैस सिलेंडर की खरीदारी और जखीरा अंदोजी में मुलविस थे। नागार्जुना सागर में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क बुद्धावनम प्रोजेक्ट जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इम्कान है कि उसे चकली गुट्टू जजीरे से जोड़ा जाएगा। पारे की सतह बढ़ने के साथ ही काली फिल्में और भारी रंगत वाले शीशे शहर में वापस। ताहम सिटी पुलिस ने रंग बिरंगे शीशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम की शुरू। समाजी कारकुनों का दावा कि लोगों में काले शीशों के खिलाफ बेदारी की कमी। एक ऐसे वक्त में जब मुख्तलिफ महकमों में असामियों को पुर करने की कोशिश जारी, रियासती हुकूमत ने वरंगल में MGM अस्पताल के लिए मुआहदे की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स और सिविल असिस्टेंट सर्जन के ओहदों के लिए दरख्वास्त तलब किए। रियासती BJP सदर बंडी संजय कुमार ने धान की खरीदारी के मसले पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक खुला खत लिखा। अपने खत में करीमनगर के MP ने CM से कहा कि अगर वो खुद धान की खरीदारी नहीं करते तो वो इस्तीफा दें। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने शहरियों से किया मुतालबा कि वो अपनी रिहाइशगाह से ही ग्रीन एनर्जी के इक़दामात शुरू करें। आउटर रिंग रोड के करीब 89 कॉलोनियों को अप्रैल के पहले हफ्ते तक पानी की कनेक्शन फराहम करने के मकसद के साथ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने आबी ज़खायर की तामीर और आउटर रिंग रोड फेज 2 के तहत पाइपलाइनें बिछाने में शामिल कंपनी के लिए एक आखिरी तारीख की मुकर्रर। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने जुमे को RRR फिल्म टीम के लिए बसों का किया इंतजाम। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से वेव रॉक तक बसें चला रही। मिनी AC बसें IT मुलाजमीन को गर्मी से निजात दिलाएंगी। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने तेलंगाना स्टेट पॉलिसेट 2022 की दाखिला इम्तिहान के शेड्यूल का किया ऐलान। ये इम्तिहान 30 जून को मुनक्किद होने वाला है। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के अपने बड़े मंसूबे के ऐलान के बाद नौजवानों की एक रिकॉर्ड तादाद ने शहर में लाइब्रेरियों का दौरा करना शुरू किया। ताहम पुराने शहर के नौजवानों को लाइब्रेरियों और कोचिंग सेंटर्स जैसी सहूलियात की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना।
वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के मुताबिक मरकजी हुकूमत को रियासत में धान की खरीदारी करनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स अहलियती इम्तिहान टेट 12 जून को मुनक़िद करने का किया ऐलान। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने कहा, टेट इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को 26 मार्च से ऑनलाइन तरीके से दरख्वास्त दाखिल करने का मशवरा। नामपल्ली की एक अदालत ने निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।